स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर रितिका आइमा है and I've secured All India rank 33 in UPSC CSE 2023. Before that, I had secured All India rank 186 in UPSC CSE 2022. मैं देहरादून उत्तराखंड की निवासी हूँ and most of my schooling has been there only from Brightland School. My graduation subject was MBBS that I did from Government Medical College, Haldwani in Uttarakhand. This was my third attempt at UPSC. In all three attempts, I had reached mains as well as interview stage. And what I have realized is that UPSC mein mains is probably the most important part because that is what ensures whether you will be in the list or not. So today I'll try to talk about my main strategy and specifically the strategy for general studies, where I was able to score over 400 marks every single time. And interestingly, my preparation was from at home itself. So this would be one of those videos where you can get an at-home strategy regarding the UPSC mains preparation. So let me tell you how I started preparing. तो when I started preparing it was 2020 जब कोविड के लॉकडाउन्स लगे हुए थे. तो उस टाइम पे वैसे भी going to a coaching institute or going to Delhi was something that people were not doing. तो I was not sure कि घर पे पढ़ाई हो पाएगी या नहीं. But nonetheless there was no other option. तो I started preparing. I started with the basics. NCERTs हो गई, सारी बुक्स ऑनलाइन मंगा ली और जो सारे टॉपर रिकमेंडेशंस होती हैं वहाँ से देख देख के आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट एंड किताबें घर पे ले आई. आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स. तो समझ में सब आ रहा था बट समहाउ यू नो देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग गैप बिटवीन स्कूल एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो जो टच होता है ना विद द सब्जेक्ट्स दैट वाज काइंड ऑफ लॉस्ट. तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझ में आ रहे हैं बट उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फॉर सम रीज़न. So then I started watching YouTube videos about it. वहाँ मैंने realize किया कि lot of coaching institutes and even freelance teachers individually जो है they had started putting videos for UPSC preparation. तो वहाँ से I started to read on my own and then you know साथ साथ videos देखना भी start कर दिया. The best thing about this was that almost all of the content is freely available either on YouTube or for that matter various institutions have given that written material also online. जैसे दृष्टि है, Insights was there. तो वहाँ पे proper ऐसे notes जैसे बने हुए I could find. So my preparation started like that and over time I realized कि there are a lot more avenues that are freely available जिनको use करके we can prepare from home itself. So I'll try to go subject wise with the type of resources that I was using. There are two important things in UPSC preparation. है ना? One is the static part and the other is current affairs. So first let's discuss the static part. तो GS1 से start करते हैं. GS1 has important subjects like history, geography, then there is international history and there is art and culture. तो history के लिए I think most toppers recommend certain books. मैंने ना लेकिन interestingly history के लिए NCERT के अलावा कोई book नहीं पढ़ी. What I did on the other hand was there was a teacher जिन्होंने नया नया वीडियोस डालना स्टार्ट किया था उस टाइम. ही गोज बाय द नेम विशाल चौहान सर. सो ही यूज्ड टू बी अवेलेबल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म देन. अभी ही हैज चेंज्ड हिज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बट यू कैन सर्च हिम थ्रू हिज नेम एंड यू विल फाइंड हिज वीडियोस फ्रीली देयर ऑन यूट्यूब. ही कवर्ड द एंटायर हिस्ट्री एस्पेक्ट. सर के वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव है बट मोर देन दैट यू नो ही हैज़ अ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ अप्रोच. तो ही इज़ अ वंडरफुल टीचर. तो उनके साथ ऐसा होता था कि एवरी डे ही यूज्ड टू पुट अप अ वीडियो. ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे की वीडियो होती थी. मैं 2x पे सुन लेती थी. आई हैड दिस हैबिट कॉफ़ी पीने की. सो विद कॉफ़ी फॉर एन आवर और 1.5 hours आई वुड जस्ट लिसन टू हिम. इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे इवेंचुअली थ्रू हिज लेक्चर्स. बट वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट वॉज हिस्ट्री की एक स्टोरी, एक टाइमलाइन के साथ जो है ना थ्रू सर्स वीडियोज दैट गॉट एच्ड इन माई माइंड. तो व्हेन यू राइट आंसर्स यू नॉट जस्ट एबल टू राइट पॉइंट्स बट यू आर ऑल्सो एबल टू क्रिटिकली एनालाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी. तो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होता. कई बारी टीचर को सुनना और डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनना इन अ नैरेटिव फॉर्म ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. देन हिस्ट्री के लिए there's another very famous teacher on YouTube, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर. तो उनके भी काफ़ी वीडियोस देखे थे मैंने. There's a difference between these two teachers and
आपको जो पसंद आता है यू शुड सिलेक्ट दैट. महिपाल सर की जो है स्ट्रैटेजी, इसमें स्टोरी टेलिंग थोड़ी कम है एंड द वीडियोज आर मच मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एग्जाम परस्पेक्टिव. तो डेट्स पे ज़्यादा एम्फोसिस होगा या स्मॉल लिटिल थिंग्स जिनसे MCQ बन सकते हैं, दैट आर मोर देयर इन द फैक्ट्स जिसे कहते हैं ना, दे आर मोर इन महिपाल सर्स वीडियोज़. बट विशाल सर जो है वो स्टोरी टेलिंग कराते हैं, लिटिल लॉन्गर वीडियोज़ I'd say. But if you can get used to his way of teaching, then no teacher is better than him. ऐसे ही मैंने आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस भी जो है विशाल सर के ही देखे थे. मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी फॉर द सेम. नितिन सिंघानिया इज़ अ वंडरफुल बुक. उसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं एंड यू कैन मार्क इन द बुक इटसेल्फ. रिवाइज करने के लिए भी इट इज़ वेरी ईजी. बट इफ़ यू आर समबडी हु यू हैव टाइम, आपके पास 1.5 year है, then you should try to study these subjects with a little bit more depth. बिकॉज उससे एक इंटरेस्ट बन जाएगा ना. दैट इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी करंट अफेयर्स. क्योंकि करंट अफेयर्स के वक्त ना इट गेट्स वेरी बोरिंग. सेम नाम आते हैं, कभी कोई टेम्पल न्यूज़ में आ जाता है, तो आपका वो जो एक लिंकेज बन जाता है टू कनेक्ट स्टैटिक विद करंट अफेयर, दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव सम इंटरेस्ट इन द स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो. सो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो फिर द जर्नी बिकम्स वेरी एन्जॉयबल एंड दिस कुड बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मेनी ऑफ अस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लो पढ़ाई का which keeps you engaged in the process. कभी अगर पढ़ाई burden लगने लगे ना, then you have to change the way you study. So next subject is geography. Geography में मैंने बड़ी standard books पढ़ी थी. NCERT was there, GC Leong was there, and एक और book आती थी Indian Geography for Civil Services करके. But geography में ना concepts काफ़ी important होते हैं, तो for a long time I could not understand those concepts. So I found this great teacher online, Dr. Shraddha करके हैं. She was there on Sleepy Classes. I think she's still there on that platform. And उनके जो videos है ना, बहुत short में उन्होंने काफ़ी अच्छे से ना सारे concepts geography के समझाए हुए हैं. So that I appreciate very much. See, I'll try to keep giving you teachers जो मेरे को online मिले और अच्छे लगे and जिनका style of teaching was very nice, so that you can also benefit from those rather than talking about just online platforms. क्योंकि किसी भी YouTube चैनल पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर ऑफ दैट क्वालिटी कि आप सबको सुन लो. सो यू शुड ट्राई एंड फाइंड गुड टीचर्स स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. दैट इज़ व्हाट आई थिंक एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड. सो कमिंग टू GS2 नाउ. GS2 में देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, देन देयर इज इंटरनेशनल रिलेशंस. ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये थोड़ा इंटरकनेक्टेड हैं और इनको पढ़ते वक्त ना हमें थोड़ा इंटरकनेक्शन बना लेने चाहिए. जैसे जब हम इंडियन गवर्नेंस या पॉलिटी पढ़ते हैं तो हाउ द इंटरनेशनल रिलेशंस अफेक्ट दैट, ये भी हमें सोचना चाहिए. या आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो हाउ द IR इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इंडियन इकोनॉमी, ये सब सोचते हुए चलना चाहिए. और जनरली क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स में ये इंटरकनेक्शन नहीं होते. तो आइदर यू गिव योर सेल्फ दैट मच इंट्रोस्पेक्टिव टाइम और आप खुद से ये बनाओ, या फिर वही होता है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स के परस्पेक्टिव के थ्रू वो इंटरकनेक्शन बना लेते हो, विच एवर वे इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू. Polity as a subject is something that I've always liked because I had a great polity teacher back in school. तो स्कूलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है. स्कूल में टीचर्स का जो रोल होता है दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग इंटरेस्ट. आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो आई स्टडीड अ टेक्स्ट बुक ओनली फॉर दैट, है ना. लक्ष्मीकांत है, वो मैंने काफ़ी अच्छे से कर ली थी 2-3 बार और मेरे को समझ भी अच्छे से आ गई थी इन द सेंस दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स डायरेक्टली आफ्टर यू रीड लक्ष्मीकांत. देयर इज अ टीचर हियर आयुष रैना करके. सर के वीडियोस मैंने 2 साल देखे हैं पॉलिटी के. 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके सर के वीडियोस थे. देन आंसर राइटिंग सर कराते हैं तो उसमें पॉलिटी वाला जो है वो काफ़ी अच्छा बताते हैं. एंड हाउ टू इंटीग्रेट दैट विद करंट अफेयर्स, दैट आई लर्न थ्रू हिज वीडियोज़. देन बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं विच यू विल नॉट फाइंड पर से इन बुक्स, वो करंट अफेयर्स के थ्रू हमें नोट करने पड़ते हैं. सो आइदर यू डू दैट योर सेल्फ और देयर आर दीज टीचर्स लाइक आयुष रैना सर, वो वीडियोस स्पेशली बनाते हैं डेडिकेटेड टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड लैंडमार्क जजमेंट्स. तो वहाँ से आप 1-2 घंटे बैठ जाओ और उसको अपने नोट्स में लिख लो, तो यू विल बी एबल टू यूज दोज जजमेंट्स इन वेरियस आंसर्स. हमेशा नहीं होता कि डायरेक्टली जजमेंट पूछ लें, बट आप जजमेंट को कोट जरूर करते हो अपने मेन्स आंसर राइटिंग में. जजमेंट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो करने के लिए यू शुड हैव सम सोर्सेज लाइक इनसाइट्स देता है कई बार, वहाँ पढ़ा है मैंने. देन दृष्टि IAS वाला जो है उनका वेबसाइट, इवन दे हैव अ लॉट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ईयर मार्क, तो आप उसको अपने फ़ोन में भी बुक मार्क कर सकते हैं. देन नेक्स्ट GS2 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है
दैट इज़ गवर्नेंस. नाउ गवर्नेंस के लिए देर आर गुड बुक्स दैट आर स्पेशली ओरिएंटेड फॉर यूपीएससी. मैंने देखा है ऑनलाइन एंड मार्केट ऑल्सो. बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो उस टाइम पे ना मैंने बुक्स यूज़ करी नहीं थी. एक्चुअली मेड नोट्स फॉर गवर्नेंस एंड आई डिड दैट टॉपिक वाइज, क्योंकि सिलेबस तो हमें पता होता है और सिलेबस में कीवर्ड्स दे रहते हैं. तो आई हैड ऑलरेडी मेड माई नोट्स, सो आई डिडंट रीड अ बुक, बट व्हाट आई डिड वाज जो स्कीम्स रहती हैं, ये स्कीम्स बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, पीआईबी में मिल जाएंगी इफ़ यू कैन गो थ्रू दैट, न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 40-50 स्कीम्स रहती हैं, अगर आपने स्कीम्स अच्छे से कर ली तो वो तो वैसे भी प्रीलिम्स के लिए करनी है, बट दे आर ऑल्सो द कोर ऑफ योर आंसर राइटिंग इन गवर्नेंस. तो आफ्टर यू डन योर बेसिक नोट्स, यू अंडरस्टूड द थ्योरी पार्ट ऑफ गवर्नेंस, फोकस मोर ऑन द स्कीम्स. और स्कीम्स डायरेक्टली कई बार कभी कभी पूछ लेते हैं, बट इवन इफ दे डोंट आस्क देन वी हैव टू राइट दोज टू सब्सटैंशिएट आवर पॉइंट्स. सी मेंस आंसर राइटिंग की एक ही की है दैट वंस यू राइट अ पॉइंट यू शुड गिव एन एग्जाम्पल और यू शुड गिव अ केस स्टडी एट द एंड, जिससे आपके जो करंट अफेयर्स है वो आप लिंक कर सको विद द स्टैटिक पार्ट. तो उन सब के लिए ये स्कीम्स हो गई, या कोई नई चीज़ आ रही है, कोई लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है, ये तो आपको यू हैव टू मेक अ स्मॉल कॉपी ऑफ इट, यू हैव टू राइट इट एंड देन यू हैव टू kind of mug it up so that you are able to present it in the answer whether it is asked or not. Then there is IR, International Relations. तो IR के what I did was I went through the PYQs. तो उसमें I realized कि theory पे ऐसे question आते नहीं है ज़्यादा. What they ask is how India and Indian relations are with different countries, and that is mostly depending on उस time पे क्या news में है. Like if India-US relations are in news, then that will be asked. If India-Russia is in news because of some reason, then that will be asked. So the best thing is that you get a copy and हर एक country को ना एक एक page दे दो. So like I had India-US एक page, दूसरा page India-UAE, next page India-Russia, ऐसे करके, और एक एक पेज के शॉर्ट में एकदम कंटेंट लिख लीजिए. इसमें ना डेटा आता है, जैसे हमारा ट्रेड कितना वर्थ है, या हमारे रेमिटेंसेज अगर कोई आ रहे हैं तो लार्जेस्ट रेमिटेंस किस कंट्री से आता है तो उसको उसके पेज में लिख लिया. तो ऐसे करके यू विल हैव शॉर्ट बट क्रिस्प नोट्स, और वही आपको वहाँ पे लिखने रहते हैं टू एक्सप्लेन द रिलेशन. इसमें एक बहुत अच्छे टीचर है प्रशांत धवन सर, तो वो काफ़ी अच्छा एनालिसिस करते हैं स्पेशली फॉर IR. तो इफ़ यू वॉच हिज वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ why the relations are developing in a certain way and where they are headed for the future. तो क्योंकि UPSC एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, इट इज़ एन एनालिटिकल पेपर. तो एनालिसिस करते हुए चलना पड़ता है सिलेबस का. तो जब आप पढ़ते हो, आप याद करते हो, वो ठीक है, बट दैट इज़ नॉट इनफ इन इटसेल्फ. उसके साथ साथ आपको सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और कितने डीप में मेरे को पता होना चाहिए, सो दैट व्हेन इट कम्स इन द एग्जाम एंड वेयर यू डोंट हैव मच टाइम टू थिंक, ये पुराने से सोचे हुए जो थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं, यू आर एबल टू प्रेजेंट देम फास्ट इन द आंसर राइटिंग. सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की. So I did a sleepy classes YouTube marathon. I would binge sleepy classes day and night. तो स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं. मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पढ़ी हुई है, बहुत ही हेल्पफुल है. मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट GS3. GS3 में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं लाइक इंडियन इकोनॉमी. नाउ दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पेपर आई फील, क्योंकि इकोनॉमी जनरली मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन, एंड इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं एंड काफ़ी क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, विच यू कैनॉट जस्ट राइट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज. आप हो सकता है ऐसा क्वेश्चन साइंस एंड टेक में कर ले जनरल नॉलेज से, आप एनवायरनमेंट लिख सकते हो जनरल नॉलेज से, बट इकोनॉमी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसमें कीवर्ड्स का आना बहुत ज़रूरी है. तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ बजट इज आस्क्ड या FDI इज आस्क्ड, तो यू हैव टू नो कि मतलब ये टर्म कहाँ से आया. इफ देयर इज अ डेफिनेशन टू इट देन यू शुड राइट इट. इफ देयर इज अनदर कीवर्ड टू एक्सप्लेन इट देन यू शुड गिव दैट ऑल्सो. तो इसमें ये है कि आई ट्राइड टू रीड इट फ्रॉम द NCERT itself, but I was not enough with respect to answer writing. तो नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, दैट इज़ द वन दैट आई रेड. उसमें काफ़ी अच्छे से ना पॉइंट वाइज दिया हुआ है, प्लस एवरीथिंग इज़ वेरी वेल रिटन इन टर्म्स ऑफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, देन एनी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट इफ देयर इज, तो वो उसके साथ ही उस पेज पे मेंशन रहता है. इस तरह से इट्स वेरी वेल रिटन बुक एंड इट इज़ अपीलिंग टू द आईज ऑल्सो, क्योंकि उसमें कहीं पे टेबल्स बने हैं, कहीं पॉइंटर्स हैं.
तो आई थिंक दैट इज़ अ बुक टू कंसिडर. देन अंकित अग्रवाल सर है, तो उनके ना डेली वीडियोज़ आते हैं इकोनॉमी को समझाते हुए कि अभी जैसे करंट अफेयर्स चल रहे हैं इकोनॉमी के, सो ही विल पुट दैट. एंड देन ही ऑल्सो then goes back to the static part of economy and explains if there is any process there to it. तो काफ़ी अच्छे से वो समझा देते हैं with respect to that. Then another subject very important for GS3 is science and tech. ये काफ़ी easy subject हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखोगे last 1-2 years में ये technical questions are also asked. The good part of that is कि science and tech आज भी जो है current affair से हो जाएगा. Like जो चीज़ न्यूज़ में है वही पूछी जाएगी, although काफ़ी डीप में पूछी जाएगी. So when you study and prepare, so you will have to make short notes of it. I have not come across a book on science and tech as such जो कि मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो, considering the fact कि वो इतना स्टैटिक नहीं आता, वो डायनामिक ज़्यादा आता है. तो you will have to prepare your own notes for that. Then Dr. धर्मेंद्र हैं, a teacher for science and tech. उनके काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को वीडियोज़. He explains the concepts also. And he has a kind of commanding सा presence, मतलब वो कोई बात आपको एक बार समझा देंगे तो आपको याद रह जाएगी. तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम. देन देर इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट. आई हैव नॉट रेड अ बुक फॉर इट पर से, क्योंकि मेरे को लगता था कि एनवायरनमेंट मतलब इज अ सब्जेक्ट दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड दैट आई राइट इट ऑन माई ओन. बट आई प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स फॉर इट बिकॉज देर आर कन्वेंशंस हो गया, कोई डेट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है तो, या न्यूज़ में कोई चीज़ आ गई कि सपोज कोई केमिकल बैन हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें. देन कौन सा कन्वेंशन उससे एसोसिएटेड है. अब अगर मरीन पोल्यूशन हो रहा है तो आपको मारपोल के बारे में पता होना चाहिए. तो इस तरह की जो चीज़ें उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स ही बना लिए थे. इफ़ यू फाइंड अ बुक देन दैट्स ऑल्सो वेल. देन आई हैव दिस टीचर डॉक्टर मनमीत, उनके वीडियोज़ देखे हैं मैंने काफ़ी एनवायरनमेंट को लेके. देन एनवायरनमेंट वॉज अ सब्जेक्ट दैट आई लाइक्ड ऑल्सो, तो थोड़ी मेरी को नॉलेज है विच आई यूज टू पुट ऑन माई ओन इन एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा. आई थिंक इफ़ यू आर विजिलेंट और आप थोड़ा सा ना कॉशियस रहते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में, तो आप इन्वायरमेंट को लेके ना कई सारे एग्जाम्पल्स खुद बना लेते हो एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेंस एंड कहीं पे उसमें कुछ लेक के बारे में था, मतलब समथिंग रिलेटेड टू रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज आई थिंक. सो मेरे को थोड़ा आइडिया था कि सुखना लेक का कुछ चल रहा था उस टाइम न्यूज़ में. देन जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर के पास एक लोकल सा लेक था, तो ना वो छोटा सा लोकल सा लेक हो सकता है कि एग्जामिनर को डायरेक्टली पता ना हो बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग इन न्यूज़. हाउएवर सिंस इट वाज अ करेक्ट फैक्ट आई डिड पुट दैट इन एग्जाम. तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हैं कि कोई आपके छोटे से गांव मोहल्ले की बात है, तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट ऑल्सो. एंड एनवायरनमेंट जैसे पेपर्स में ये चीज़ें चल जाती हैं बिकॉज दीज आर वैलिड एग्जाम्पल्स. बस ये होना चाहिए कि मन से नहीं बनाना कुछ झूठ, एज लॉन्ग एज यू नो कि कहीं पे आस पड़ोस में हो रहा है तो यू कैन पुट दैट इन एनवायरनमेंट. इवन स्मॉल केस स्टडीज लाइक सपोज आपका अपना स्कूल कुछ ऑर्गेनाइज करा रहा है, ऐसे क्लीनलीनेस ड्राइव, आई डोंट थिंक यू शुड नॉट राइट इट. अगर आपको कोई और अच्छा एग्जाम्पल याद नहीं आता विच इज मोर प्रोमिनेंट, you can write it. You can go ahead and put that as a case study and substantiate your answer. Lastly, let's talk about GS4. क्योंकि GS4 I used to find it very tricky initially. GS4 ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी लिख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा है एथिक्स पे, ऑनेस्टी पे, इंटेग्रिटी पे, तो हम सबके अपने व्यूज़ होते हैं उसको लेके और हम काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं. बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू राइट दोज व्यूज़ आई वॉज गेटिंग अराउंड 100-105 ऐसे. तो मतलब वो स्कोरिंग नहीं हो रहा था. ऑल्दो माई आंसर्स वर वेरी मच कंप्लीट बट आई थिंक दे वर जेनेरिक इन अ वे. तो दैट वाज व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ सेकंड अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड वाज आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ ऑथर्स इफ आई कुड, या कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो गई या कोई केस स्टडी हो गई अपने एथिकल व्यू को समझाने के लिए. बट इवन देन द मार्क्स वॉज इन द सेम रेंज. नाउ दिस टाइम आई स्कोर्ड अराउंड 122 इन एथिक्स. व्हाट आई डिड डिफरेंटली वॉज कि इस बारी ना I changed the way I used to write my answer. I think that ethics में point wise नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ethics is not about how many points you can write. It is about how strongly you feel for a value. तो पहले मैं केस स्टडी भी काफ़ी टैबुलर फॉर्म हो गया या पॉइंट वाइज लिखती थी ना. इस टाइम मैंने उसको जैसे ऐसे का पैटर्न रहता है पैराग्राफ्स में, ज़्यादातर वैसे लिखने की कोशिश करी, क्योंकि एथिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट यू शुड एक्सप्लेन. तो अगर मैं कह रही हूँ कि ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू, I can't just write one point and say honesty is important value for integrity and then move on. It should be a complete sentence that explains my perspective, like honesty is important value for integrity. Then कुछ आगे sentence बनाइए, ठीक है, for the purpose of a well functioning society
एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरह से कुछ बनाने से ना हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो दिखता है। एंड आई थिंक एथिक्स का पेपर इज़ फॉर दैट ओनली, टू एनालाइज कि आप सोचते कैसा, व्हाट इज़ योर थिंकिंग पैटर्न, हाउ स्ट्रांगली डू यू फील अबाउट वैल्यूज़। इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन सी थ्योरी आपने एथिक्स में पढ़ ली, या कितना ज़्यादा अच्छा सा आप डिफाइन कर रहे हो ऑनेस्टी को, या ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन कैसे दे रहे हो आप। ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ये एक किस्म का पेपर है टू सी योर पर्सनैलिटी एंड योर वे ऑफ थिंकिंग। तो इसमें थोड़ा कोशिश करके हो सके तो लॉन्गर सेंटेंसेज लिखिए, हो सके तो पैराग्राफ लिखिए। ना दोज पैराग्राफ्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो। तो क्योंकि थोड़ा सा आंसर को सुंदर भी दिखाना रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स लिखने ही नहीं है, बट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड एंड अ लिटिल लॉन्गर दैन नॉर्मल। मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट 1 डाल दिया, एक लाइनर लिख दिया, थोड़ा सा उसको जो है एक सेंटेंस फॉर्म में लिखो तो बेटर रहता है। नाउ एथिक्स आई हैव स्टडीड ऑन माई ओन, आई मेड माई ओन हैंड रिटन नोट्स। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी इसके लिए, लेकिन मैंने PYQs काफ़ी सारे सॉल्व किए थे, बिकॉज वो PYQ सॉल्व करते करते यू रियलाइज़ कि अगर कोई टॉपिक पे मेरे पास मटेरियल कम है तो फिर आप फटाफट जो है गूगल पे या किसी कोचिंग वेबसाइट से उस मटेरियल को सब्सटैंशिएट कर लेते हो। तो उसके लिए वो अप्रोच काफ़ी अच्छी रहती है। एंड देन देयर आर केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ आर समथिंग वेयर देयर इज़ अ काइंड ऑफ पैटर्न टू इट, जो काफ़ी सारे आंसर राइटिंग कोर्सेज में मैंने देखा हुआ है। तो स्लीपी क्लासेस का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम आता है, डेली आंसर राइटिंग करके। तो उसमें मैंने एथिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखा था दैट देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी विच इज़ दैट आप 3 ऑप्शन देते हैं, और पहले 2 ऑप्शन जो है थोड़े एक्सट्रीम होते हैं ऑन बोथ द एंड्स, एंड तीसरा इज़ अ वेल बैलेंस्ड ऑप्शन जिसको आप चूज़ करते हो। आई थिंक इट इज़ अ गुड इनफ एंड अ सेफ स्ट्रैटेजी। तो आप उस स्ट्रैटेजी को तो फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके आंसर को एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दे देता है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता वहाँ पे फिर ऑप्शन सोचने में कि अगर केस स्टडी कुछ पूछ रही है तो मैं क्या करूँ। आपको पता होता है कि पहले मैं जो है एक एक्सट्रीम एंड पे जाऊँगी, सेकंड में ऑप्शन में मैं दूसरा एक्सट्रीम एंड ले लूँगी, एंड थर्ड में एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच दे दूँगी। दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। और कुछ कभी कभी इन जेन्युइन टाइप के बहुत ही मतलब क्रिएटिव सा आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हो, बट जस्ट कीप इट बैलेंस्ड। और 3 ऑप्शन बहुत रहते हैं तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है वहाँ लिखने का। सो 5-6 ऑप्शन भी नहीं देने के, कम ऑप्शन दीजिए, लेकिन एक्सप्लेन देम वेरी वेल एंड एक्सप्लेन देम ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वालिटीज़ जो हमारे एग्जाम के सिलेबस में मेंशन रहती हैं। उन क्वालिटीज़ को अगर हम बार बार उन कीवर्ड्स को डालते हैं तो वो हमारे आंसर को थोड़ा सा जो है वेट देती है, एंड उसके बेसिस पे आई थिंक मार्किंग इज़ मच बेटर। सो दैट शुड बी डन फॉर दीज सब्जेक्ट्स। दीज आर ऑल स्टैटिक सब्जेक्ट्स, लेकिन करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है टू कोरोबोरेट दी सब्जेक्ट्स। वो करंट अफेयर्स करने का हर किसी का एक अलग स्टाइल हो सकता है। सी आई यूज्ड टू डू फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में क्या है, एवरी डे ऑल दीज वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड चैनल्स जो हैं दे कीप पोस्टिंग डेली करंट अफेयर्स। तो उसमें ये रहता था कि अगर मैं कुछ और काम भी कर रही हूँ तो मैंने हेडफोन लगा लिए और पीछे से सुनती जा रही हूँ। दैट हेल्प्स इन रिवाइजिंग ऑल्सो, एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग गया तो आई वुड नोट इट डाउन इमीडिएटली। इसके अलावा देयर वाज इनसाइट्स कम्स अप विद अ मंथली करंट अफेयर मैगजीन, तो मैं उसको ऑनलाइन PDF ही डाउनलोड कर लेती थी। इट्स अ वेरी गुड रिटन मैगजीन। हाँ, थोड़ी सी बल्की है, मतलब आई थिंक समटाइम्स इट गोज अप टू 250 और 300 पेजेस ऑल्सो, बट दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ पिक्चर्स डाली रहती है या कुछ प्रीलिम के क्वेश्चन रहते हैं, वो बल्कि लगती है, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। एंड एक मंथली करंट अफेयर आई थिंक इफ़ यू स्टिक टू इट तो 4-5 डेज में हो जाता है, विच इज़ the time that you should give to it. So like that if you prepare the static and the current affair together तो आपकी preparation काफ़ी अच्छी हो जाएगी, and try to keep it in such a way कि आप different subjects को साथ में लेके चल सके and interlinkages बना सके. That is most important in answer writing. And with that I think we have mostly covered everything with respect to general studies. I hope that helps you, and see you later. Thank you.